Anji, welcome to Desi Fans Talk, where an ordinary fan will talk about random stuff with you guys sports, cricket, movies, experiences. You want expert opinion and analysis? Dafa ho jao yahan se. You want statistics and numbers? Go somewhere else. There's plenty of other channels that offer that stuff. Yahan pe, you're just gonna get straight up raw emotions and unadulterated opinions. जो लोग अभी मेरे बालों को देख रहे हैं and they're thinking there's some weird tattoo stuff going on my head. It's not a tattoo. You checking me out? Check out the video I did on hair transplant. अभी पिछले हफ्ते मैं तुर्की सल्तनत उस्मानिया में गया था और वहाँ पे जाके मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया. गंजा हो गया था यार. Go check out the video I posted on the hair transplant thing. मैंने पूरा अपना vlog उसमें पोस्ट किया है. यहाँ पे टाइम मत ज़ाया करो. जो लोग मेरी अभी पूंडी कर रहे हैं वहाँ जाके चेकआउट करो मुझे. All right, let's get into the roundup of the week. मैंने क्या क्या किया इस हफ्ते? I saw Cristiano Ronaldo's interview at Piers Morgan show. Really interesting interview. I thought that it was well done. I thought it was very intimate. Ronaldo ने काफ़ी अपनी personal बातें शेयर की हैं उसके अंदर, including the fact that he thinks he's the best player ever to ever step foot into the football pitch, which I think is ridiculous. पता नहीं वो क्यों समझता है he's the greatest of all time. In my opinion, Messi, skills wise, achievements wise, is way ahead of Ronaldo. मैं तो समझता हूँ मैराडोना भी शायद इससे बेहतर प्लेयर था. और भी एक दो प्लेयर हैं फुटबॉल के अंदर जो शायद CR7 से बेहतर हैं. Original R9, much better than CR7. I'm not saying Cristiano Ronaldo is a garbage player. He's one of the best. और जो उसकी longevity है और उसका जो achievements हैं, very few can get even close. लेकिन यार greatest of all time, come on यार, थोड़ा सा अपने टूल में से बाहर निकलो. Piers Morgan seems to agree with him. लेकिन Piers Morgan का क्या कसूर है? वो तो क्या कहते हैं आर्सेनल का सपोर्टर है. He doesn't know shit about this. But it's one funny thing. It was interesting that Ronaldo said he wants to do an interview with this guy. Okay, I want to see that. Can't wait. Movie theater गया था मैं. I was really anticipating watching Now You See Me. मैंने जाके मूवी थिएटर के अंदर टिकट लिया, soda liya, popcorn liya, got there early, watched all the trailers before the movie, was really anticipating this thing to begin. I thought it was going to be like the first movie. लेकिन नहीं यार, जितनी अच्छी पहली फिल्म थी उतनी ही बकवास ये है. फर्स्ट मूवी के अंदर क्या ज़बरदस्त एक्टिंग हुई थी, कास्ट बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन वाज रियली गुड, द मैजिकल एक्ट्स वर shown in a really tasteful way, और at मूवी के एंड में रिवील भी था बहुत अच्छा. It was a really good movie. Overall, I enjoyed it. So I thought this was going to be good as well. इसमें तुम यार पहले मिनट से मैं सोच रहा हूँ यार कब यार मज़ा आना शुरू होगा. ये सारी वही कास्ट है. इन लोगों को चाहिए कि वो उसी तरीके से आगे चलाएं. लेकिन यार it was forceful. The jokes were forceful. एक दूसरे को झुकते मार रहे मूवी के अंदर for no reason. ऐसा लग रहा था बॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ मैं. But it was really like, stupid, not a well put together movie. Overuse of CGI. The only actually good thing about the movie was this auntie from Gone Girl actually trying to do a South African accent, and she actually pulled it. I really enjoyed it. I don't know how accurate she was with the accent, but it was really nice. It was well done. That was the only good part of the movie. Now You See Me, नाम change करो इसका. It should be Please Don't See Me. टट्टी फिल्म है ये. Speaking of टट्टी, इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज अभी खत्म हुई है. हाँ, वाइट वॉश्ड एट होम बाय साउथ अफ्रीका. हाउ डज दैट फील? बड़े शेयर बनते हो यार तुम लोग. बड़ी टीम डेप्थ, और हम 2-3 टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट के अंदर टीमें बना सकते हैं, T20 के अंदर टीमें बना सकते हैं. क्या हुआ? बोना टकर गया ना, राइट? विंक विंक. मुझे समझ नहीं आती. तुम लोग पावर हाउस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. यू हैव so many players coming through your system. You have so much money. You have so much stadiums and infrastructure. फिर भी ये हरकतें करना कि ये तुम स्पिनिंग ट्रैक्स बना लो जो पहले दिन से ही ज़बरदस्त स्पिन दे रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड. ये तो छोटी टीमों की हरकतें होती हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है. कोई स्किल सेट नहीं है. उनको पता है कि यार अगर हम नॉर्मल विकेट बना लेंगे उन्होंने हमें कुट देना है, पर हमसे होना नहीं है. हम पेस विकेट तो बना नहीं सकते, मिट्टी इतनी सपोर्ट नहीं करती है. तो हम उसको ऐसा करते हैं, उसको पकाते हैं, रोस्ट करते हैं और उसको स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं. पहले दिन से ही जंपे मारेगी बॉल तो हो सकता है चांस निकला है. वाई आर यू डूइंग दैट? डजंट मेक एनी सेंस. तुम लोग पिछले कुछ सालों से यही करते आए हो. इंग्लैंड आती है, इंग्लैंड वालों को तुम लोग ऐसी पे विकेट देते हो 20 पे आउट हो जाते हैं.
तुम खुद भी 20 पे आउट हुए थे। ये ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को करने की। इफ़ यू गाइज थिंक यू आर रियली दैट गुड एंड इफ़ यू आर दैट गुड यू शुड बी प्लेइंग ऑन सपोर्टिंग गुड पिचेस। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने यही हरकत करनी है। पहले टेस्ट मैच के अंदर तुमने फिर दोबारा से वही टर्निंग ट्रैक बनाया जो पहले दिन से ही छलांगे मारी है, गेंद हार गए हो, जलील हुए। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर तुम लोगों ने सोचा नहीं, ऐसे नहीं हमें करना चाहिए, हमारी तो बेइज्जती हो रही है। और क्या कहते हैं, तुम लोगों ने नॉर्मल एक पिच बनाई है और उस नॉर्मल पिच पे भी बेइज्जत हो गए हो, 400 रन से हारे हो। शर्म करो यार, क्या फायदा है तुम्हारे इतने पैसे का। शर्म से याद आया, द मोस्ट बोरिंग एंड यूजलेस ट्राई सीरीज हैज जस्ट कम टू एन एंड। पाकिस्तान, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। इस सीरीज का मुझे कोई मकसद बता दे, करना क्या चाह रहे हो। इतनी यूजलेस, कोई प्रमोशन नहीं हुई हुई। 3 टीमें बुलाई हुई हैं, एक जिम्बाब्वे जिनको कोई पूछता नहीं है उनको तुमने बुला लिया है। चलो मेरे ख्याल से वो रिप्लेसमेंट थी उन अफगानियों की जिनको आजकल बहुत ज़्यादा पेट्रियटिज्म छाया हुआ है। खैर वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट या जिम्बाब्वे तुमने बुलाई है जिसको कोई पूछता नहीं है। श्रीलंका तुमने बुलाई हुई है जिसको बस पाकिस्तान आने का शौक ही रहता है हर वक्त, यही आते हैं अपनी फुल टीम लेके। और तो किसी को भी बुलाओ तो वो अपनी फुल टीम लेके नहीं आता। साउथ अफ्रीका के साथ उससे पहले आपने T20s कराए थे, वो अपनी सी टीम भेज रहे थे जो आपके साथ कम्पीट कर रही थी। उसके अलावा न्यूजीलैंड आती है, वो भी सी टीम भेजते हैं। कोई और आता है वो भी अपनी C, B, C, D, E, F, G टीम भेजते हैं। आप उनके साथ लड़ लड़ के जीत जाते हो, फिर आप कहते हो कि यार वाह। बट नो, दिस सीरीज वॉज यूजलेस। नंबर वन, कोई प्रमोशन नहीं। PCB को पता नहीं यार, उनके पास बंदे हैं, एक्सपर्ट्स हैं नहीं हैं, एक सीरीज को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। क्लियरली दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। एक ग्राउंड पे मैच करवा रहे हो सारे, वाई? एक ग्राउंड पे कौन मैच कराता है सारे यार। आप इधर एक मैच पिंडी में करवाओ, फिर एक लाहौर में करवाओ, फिर ये थर्ड एक वेन्यू होना चाहिए आपका। ट्राई सीरीज चल रही है यार, एक ग्राउंड के अंदर आपने वो बार बार वही टीमें आ रही हैं, उस उन्हीं पिचों के ऊपर खेल रही हैं, वही ग्राउंड की डायमेंशंस, वही एटमोसफियर, वही सारा मौसम वगैरह। क्या आप सीखते हो इस चीज़ से? नथिंग। यू शुड हैव 2 और 3 वेन्यूज़ जहाँ पे टीमें जाके खेलें और वहाँ पे जाके फिर पता चलता है कि इस पिच के ऊपर ऐसे परफॉर्म करना है, ये एनवायरनमेंट है, ये ग्राउंड डायमेंशंस हैं, ये मौसम है यहाँ का, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे क्रिकेट खेलेंगे, इस इधर जाके ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। पर नो, तुमने सारों को कहा इधर ही बैठो, इस्लामाबाद के अंदर घूमो फिरो, खाना पीना करो शाम को, और सुबह के टाइम घूमना फिरना, और आज है ना क्या कहते हैं पिंडी के ग्राउंड के अंदर मैच कर लेंगे 2 घंटे का। पिच तो वैसे भी बेकार सी चावल सी पिच होगी जो हम बार बार यूज़ करेंगे, जो कि जिस दिन फाइनल होगा उस वक्त तक इतनी गिर चुकी होगी कि 125 स्कोर मारना भी औखा हो जाएगा। बट कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान, दे वन, जीत गए हो, जिम्बाब्वे को हरा दिया। अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला के उनको हरा दिया। श्रीलंका से जीत गए हो, फाइनल भी जीत गए हो श्रीलंका से। ये ऑर्गेनाइजर्स को कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। पाकिस्तान में जब भी कोई सीरीज होती है, कुछ चीज़ें मैं जब भी देखता हूँ ना, आई क्रिंज, आई हेट देम। मुझे समझ नहीं आती है कि ये करते क्यों है, इतनी पैटी हरकतें करते क्यों हैं। लेट मी गिव यू अ कपल एग्जांपल्स। KFC बकेट चैलेंज या टपाल टी कॉर्नर के अंदर 4 बंदे बिठा के उनको ज़बरदस्ती चाय पिला रहे हैं कि कैमरा ऑन होगा ना, तुमने ये करना है, तो वो बकेट वाला जो कैमरा ऑन होगा तुम चारों में से ने तुमने बकेट सर पे डाल लेनी है। ये अथॉरिटेटिव एंटरटेनमेंट क्या चल रही है यार। नॉर्थ कोरिया या उज़्बेकिस्तान के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती है ना, तो वो उसमें दिखाते हैं कि सारा कुछ कितना सिंक्रोनाइज्ड है। सारा जब भी कोई ऑफिशियल टूर जाता है ना उधर स्टेट की तरफ से, तो वो दिखाते हैं कि ये स्टेडियम पैक हुआ है, ये यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग कितने ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं, यहाँ पे होटल में रिसेप्शन कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। इट्स जस्ट अ शो, बिकॉज बिहाइंड द कर्टन जो आपको चीज़ नज़र नहीं आती है, इट्स लाइक कंप्लीटली कंट्रोल्ड सोसाइटी। तो ये अथॉरिटेरियनिज्म वाली चीज़ें होती हैं। तो आप इधर क्रिकेट में लेके आए हुए हो कि जो फैंस अपने अपने पैसे लगा के खुद इंजॉय करना चाह रहे हैं, उनको तुमने कहा है तुम ज़रा इधर 2 मिनट बैठो ना, कैमरा ऑन होगा ना, ज़रा चाय पीते हुए दिखाना दुनिया को, दुनिया देखे कि हम कितना इंजॉय कर रहे हैं चाय पीना। डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टूपिड स्टफ। दूसरी दुनिया में देखो कवरेज कैसे होती है यार, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह, वो फैंस को दिखाते हैं, फैंस अपने मज़े में बैठे हुए हैं। फैंस, लेट द फैंस डू व्हाट द फैंस वांट टू डू, लेट देम हैव अ गुड टाइम। सारे फैंस अपने तरीके से एंजॉय करेंगे। उधर कैमरा लेके जाओ, उधर अपना टपाल डाल दो या KFC डाल दो, लेकिन क्या कहते हैं उनको कोह मत ये करने का। आई जस्ट क्रिंज व्हेन आई वॉच दिस। दूसरा यार, कमेंट्री।
मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, ये रमीज़ राजा, ये वकार यूनुस और ये आमिर सोहेल नहीं कर सकते कमेंट्री। ये बहुत ही कोई सड़ी हुई कमेंट्री है यार। इट्स लाइक द कमेंटेटर्स फ्रॉम हेल, दे बोर यू टू डेथ। और फिर इनकी बातें जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा बकवास होती हैं कि बंदा यार बोर हो जाता है। पहले से बोरिंग सा मैच चल रहा होता है, ऊपर से इनकी आवाज़ सुनता हूँ ना तो मेरे कान में से धुएं निकलते हैं। रमीज़ राजा को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। क्राफ्टेड हुए, फ्लू लाइक अ ट्रेसर बुलेट, सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ यार। कुछ और यार सीख ले, कोई काम की बात कर लो यार। आमिर सोहेल जब कमेंट्री पे आता है तो इस तरह लगता है कि यार दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये क्या है यार, इतने इतने सनसनीखेज क्यों बना रहे हो हर चीज़ को। वो दूसरा वकार यूनुस है, वो उसको ऐसा लगता है कि उसको रोलर कोस्टर से अभी उतारा है और उसको बोला है कि तू मिल्क शेक पी फिर तू कमेंट्री कर। और अभी हजम ना करी मिल्क शेक, मुंह के अंदर ही रख घूंट आखिरी, और अब तू बोल मैच के बारे में। आई अंडरस्टैंड कि इंग्लिश तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कमेंट्री कर रहे हो ऑन टीवी इन इंग्लिश, then you need to know how to speak English. खैर, congratulations पाकिस्तान for winning this try series. पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत तो ली है, लेकिन यार आई डोंट थिंक कि उन्होंने इस सीरीज को सही तरीके से यूटिलाइज किया है। इट meant nothing at the end of the day. You didn't work on your weaknesses. आपको पहली बैटिंग करनी आती नहीं है, आपको पिचेस रीड करना आती नहीं है, आपको DRS को सही तरीके से यूज़ करना आता नहीं है, आपको फर्स्ट 11 सेलेक्ट करना आता नहीं है। इन चीज़ों पे काम करना चाहिए था। आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं यूज़ की है। आपको नहीं पता चला है कि आपके कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं वर्ल्ड कप में। आपको नहीं पता चला है कि आपने कौन से ओपनर्स यूज़ करने हैं। आपको अपना मिडिल ऑर्डर नहीं पता। देयर इज़ नो रोल क्लैरिटी इन दिस टीम। यू लर्न नथिंग फ्रॉम दिस सीरीज। सो कंग्रेचुलेशंस, ट्रॉफी उठाओ, घर जाओ, लेट जाओ उसके साथ, और तो कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है जो मेरी असेसमेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, क्या ये सही है या मैं बकवास कर रहा हूँ? आई वांट टू नो योर कमेंट्स। डालो यार कमेंट्स में, गप लगाते देखते हैं कहाँ जाती है बात। Till then, I'll see you in the next video.